بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کل 247 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 صفحہ نمبر 5 سے۔ عمران صوفے پر اکڑو بیٹھا سامنے میز پر پھیلے ہوئے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کے جسم پر نائٹ سوٹ تھا اور آنکھوں میں ابھی تک گہری نیند کے سائے موجود تھے۔ دائیں ہاتھ پر اس نے ایک بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ رومال اٹھا کر آنکھوں سے بہنے والے آنسو پوچھ لیتا اور ناک سے چند لمحے سو سو کی آوازیں نکال کر وہ دوبارہ اخبار پر جھک جاتا، چند لمحے اخبار پڑھتا اور پھر رومال اٹھا کر آنسو پوچھتا اور پھر سو سو کے الارم شروع ہو جاتا۔ کیا بات ہے صاحب، یہ صبح صبح آپ نے کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ اچانک سلیمان کی طرف آواز سنائی دی۔ وہ ناشتے کے ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں ابھی داخل ہوا تھا۔ نحوست؟ کاش تم کچھ پڑھ لکھ گئے ہوتے، یہ اخبار ہے، نحوست نہیں۔ عمران نے ایک بار پھر رومال اٹھایا اور ساتھ ہی سوسو کا الارم بجاتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ اخبار ہے، میں آپ کے اس رونے کی نحوست کا ذکر کر رہا ہوں۔ سلیمان کے لہجے پر پہلے سے بہت زیادہ سختی تھی۔ میں رو تھوڑی رہا ہوں، صرف رونے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ دنیا کا عظیم ادب رونے پیٹنے کو کہتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ آج کل اخبار میں خبریں کم ہوتی ہیں اور ادب نما بے ادبی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو اخبار پڑھتے ہوئے روئے نہیں اسے بدذوق، کور ذوق، بلکہ ذوق دہلوی کہتے ہیں۔ عمران نے سلیمان کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے اس ذوق موق کو، صبح صبح رونا نحوست کی نشانی ہے اور میں اپنے گھر میں نحوست کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیمان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اخبار جھپٹا اور اسے ایک طرف پڑے ہوئے صفحے پر اچھال دیا۔ اپنے گھر میں؟ ارے خدا کا خوف کرو، یہ گھر تو سپر فیاض کا ہے، اگر اس نے سن لیا تو بغیر مقدمے کے خود ہی تمہیں جوتے مار مار کر باہر نکال دے گا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، ہو نہ ہو جوتے مار مار کر باہر نکال دے گا، اب وہ زمانے گئے جناب جب سپر فیاض مجھ پر روک ڈالتا تھا، اب میں نے باہر بورڈ لگا دیا ہے۔ سلیمان نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے بڑے بے باک رویے میں کہا، بورڈ لگا دیا ہے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں باہر بڑا بورڈ ہے، دور سے صاف پڑھا جا سکتا ہے، سپر فیاض جیسا جاہل بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور آپ بھی اگر کوشش کرے تو۔ سلیمان نے ناشتے کا دوسرا سامان میز پر رکھتے ہوئے کہا، بورڈ؟ مگر بورڈ پر لکھا ہوا کیا ہے؟ کیا کسی لپسٹک کا اشتہار لگوایا ہے؟ سچ بتاؤ کتنا کرایہ طے ہوا ہے؟ عمران نے بڑے رازدار لہجے میں کہا، لپسٹک کا اشتہار؟ ہو نہ ہو لپسٹک والے بھلا کیا بیچتے ہیں؟ میں کوئی بھوکا ننگا ہوں کہ اپنے فلیٹ پر بورڈ لگوا کر کرایہ لیتا رہوں؟ میں تو خود اسے بورڈ کارپوریشن کو 500 روپے ماہانہ بورڈ ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ سلیمان نے فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، 500 روپے ماہانہ بورڈ ٹیکس ادا کرتے ہو؟ غضب خدا کا، میں تو سپر فیاض سے فلیٹ مانگ کر گزارا کر رہا ہوں اور مجھ پہ 500 روپے ماہانہ فلیٹ ٹیکس کا کرایہ ادا کرنے کی سخت نہیں، اور تم صرف بورڈ ٹیکس 500 روپے ادا کر رہے ہو؟ عمران غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پھڑکنے لگا۔ بس آرام سے بیٹھیں، میں نے آپ سے کبھی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے آپ مجھ پر آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو غریب آدمی ہے، بیچارے چھوٹی موٹی سی جاسوسی کر کے زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے ہیں، اب کیا تنخواہ کا مطالبہ کروں اور آپ الٹا مجھ پر ہی اکڑ دکھا رہے ہیں۔ سلیمان نے عمران سے بھی زیادہ آنکھیں نکالتے ہوئے جواب دیا، تنخواہ؟ ارے باپ رے باپ، یہ لفظ تمہیں کہاں سے یاد آ گیا ہے؟ یہ لفظ تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ خرش دو اس لفظ کو اپنے ذہن سے پیارے۔ سلیمان بھائی تم تو مالک ہو، تم نے کیا تنخواہ لینی ہے؟ ہاں اگر کبھی رحم آ جائے تم مجھ غریب کو جیب خرچ دے دیا کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عمران یکدم ڈھیلا ہو کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت پر بیچار کی تاری ہو گئی تھی۔ میں مفت کو پر رحم نہیں کرتا جناب، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پہ سلامت دیے ہیں، کما کر کھاؤ، اور ہاں
अब ये फ्लैट दफ्तर बन गया है, बैनुल अक़वामी दफ्तर, इसलिए यहाँ दफ्तर और वो भी बैनुल अक़वामी दफ्तर के आदाब का हमेशा ख्याल रखना कीजिए। ऐसा न हो कि मुझे किसी दिन अंग्रेजी बोलना पड़ जाए। सुलेमान ने बड़े सख्त लहजे में कहा। अंग्रेजी बोलनी पड़ जाए? इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, बैनुल अक़वामी दफ्तर में किसी को निकालने के लिए अंग्रेजी में बोलनी पड़ती है। बैनुल अक़वामी दफ्तर में किसी को निकालने के लिए अंग्रेजी ही बोलनी पड़ती है, यानी गेट आउट। काश आप कुछ पढ़ लिख गए होते तो फिर इस तरह आपको समझाने में वक्त जाया न करना पड़ता। सुलेमान ने बेजारे से लहजे में कहा। अरे कहीं ये फ्लैट अक़वाम मुत्तहिदा को तो किराए पर नहीं दे दिया कि यहाँ सलामती काउंसिल का इजलास होता रहे और मैं बाहर बैठा कारों के नंबर ही याद करता रहूं? इमरान ने चाय पीते हुए कहा। हाँ, फिर वही बेइज्जती वाली बात। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ये कोई इदारे? आप कान खोलकर बल्कि अच्छी तरह साफ करके सुन लीजिए। अब ये दफ्तर ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का मरकजी दफ्तर है और मैं यानी इज्जत माआब सुलेमान पाशा ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का सदर हूँ। सुलेमान ने कंधे पर पड़ी हुई साफी खींचकर ट्रॉली की सतह को साफ करते हुए जवाब दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तरक्की तो इसको कहते हैं। अल्लाह तुम्हें ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का नायब कासिद बना दे, मेरी तो हमेशा यही दुआ रही है। इमरान ने बड़े पुरखलूस लहजे में सुलेमान को दुआ देते हुए कहा। आमीन सुम आमीन। हाय, क्या कहा? नायब कासिद, ये क्या होता है? सुलेमान ने चौंकते हुए पूछा। नायब कासिद हमारे यहाँ चपरासी को कहते हैं सुलेमान, बड़ी ही पक्की नौकरी होती है भाई। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, पक्की नौकरी है तो फिर ठीक है, लेकिन ये पक्की किस चीज पर है? हांडी पर या इलेक्ट्रिक कुकर पर? सुलेमान ने ट्रॉली वापस धकेलते हुए पूछा। ईंटों वाले भट्टे पर पकती है, हजारों मन कोयला जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर चपरासी की नौकरी मिलती है, और वो भी किस्मत वालों को, वरना आम तौर पर तो भुट्टा ही बैठ जाता है। इमरान ने केक पीस मुंह में रखते हुए कहा और फिर इससे पहले कि सुलेमान को जवाब देता, अचानक करीब मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन गुनगुना उठा। सुलेमान जो मेज के करीब था, इसने तेजी से रिसीवर उठा लिया। यस, इज्जत माआब सुलेमान पाशा, सदर ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन, उम्मीदवार पक्का चपरासी स्पीकिंग। सुलेमान ने बड़े मगरूर अंदाज में बोलते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? इमरान कहाँ है? दूसरी जानिब से सर सुल्तान ने उसी लहजे में पूछा। सर सलाम सर जी, बैठे हैं। सुलेमान सर सुल्तान की धार सुनकर एकदम सहम गया। रिसीवर उसे दो और सुनो, आइंदा मेरे साथ बकवास की तो गोली मार दूंगा, समझे? सर सुल्तान का गुस्सा अभी तक उरूज पर था। जी हाँ, समझ गया, सुलेमान ने घबराते हुए लहजे में कहा और रिसीवर तेजी से इमरान के हाथ में पकड़कर ट्रॉली धकेलता हुआ इस तरह कमरे से भागा जैसे सर सुल्तान अभी रिसीवर के अंदर से गोली मार देंगे। ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर से बोल रहा हूँ, फरमाइए क्या पकवाना है? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में बोलते हुए कहा। फिर वही बकवास, क्या तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते? सर सुल्तान का गुस्सा बढ़ गया था। जनाब, खाना पकवाना बकवास नहीं है। जाहिर है कच्चा खाना हमें हजम नहीं होता क्योंकि हम जुगाड़ी नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है बावर्चियों के नखरे सुनने पड़ते हैं। इमरान ने बाकायदा दलाइल देने की कोशिश की। सुनो, मेरे पास बकवास सुनने का वक्त नहीं है। सदर मुमलिकत तुम्हारे फ्लैट पर पहुंचने वाले हैं, इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा। जनाब, एक नयाब में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं? एक सदर तो मेरे पास पहले ही मौजूद है, दूसरा सदर भला कैसे यहाँ समाएगा? इमरान ने आंखें घुमाते हुए कहा। एक सदर, क्या मतलब? सर सुल्तान ने चौंकते हुए पूछा। ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का सदर जनाब, इज्जत माआब सुलेमान पाशा। इमरान ने सदर का नाम बताते हुए कहा। फिर बकवास शुरू कर दी। मैं कह रहा हूँ सदर मुमलिकत के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाएंगे। और सुनो, इनके सामने कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। सर सुल्तान का लहजा बेहद संजीदा था। क्या आप वाकई संजीदा हैं? भला कहाँ अली इमरान का फ्लैट है और कहाँ सदर मुमलिकत? इसकी सिक्योरिटी गार्ड ही फ्लैट में पूरी तरह नहीं आएंगे। सदर साहब भला कैसे आ सकते हैं? इमरान ने इस बात संजीदा होते हुए कहा, क्योंकि इस बात का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सदर मुमलिकत वाकई इसके फ्लैट में भी आ सकते हैं। मैं संजीदा हूँ। सुनो, अभी सदर मुमलिकत ने मुझे बुलवाया था। वो फौरी तौर पर एक्सटो से मिलना चाहते हैं। मैंने इन्हें कहा कि मैं एक्सटो को
प्रेसिडेंट हाउस में बुलवा लेता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह मुलाकात राज नहीं रह सकती। वो किसी दूसरी जगह इससे मिलना चाहते हैं और एक्स्ट्रो का प्राइवेट पता पूछ रहे थे। इसने इनके बेहद इसरार पर मैंने तुम्हारा नाम ले दिया कि एक्स्ट्रो का प्राइवेट पता सिर्फ तुम ही बता सकते हो और किसी को मालूम नहीं, सिर्फ फोन नंबर मालूम है और इस नंबर से लोकेशन तलाश नहीं की जा सकती। चुनाचे उन्होंने प्राइवेट तौर पर तुम्हारे फ्लैट पहुंचने का इरादा जाहिर किया। वो अकेले आएंगे। सर सुल्तान ने तुम तफसील बताते हुए कहा। मगर मुझे एक्स्ट्रो का पता कहाँ मालूम है? वो तो पर्दा नशी है और मेरे फ्लैट में पर्दा नशी टाइप की चीज का दाखिला ममनू है। आपको पता है कि डैडी ने सुलेमान की सूरत में जासूस यहाँ रखा हुआ है, मिनट मिनट की खबर पहुंचाता रहता है। पर्दा नशीन तो एक तरफ, सिर्फ पर्दा ही कभी आ गया तो डैडी जूता उठाए आंखें निकाले पहुंच जाएंगे। इमरान ने बड़े मिसमिसे से लहजे में कहा। जो भी हो, अब तुम भुगतो। सदर मुमलिकत इस राज का मुझसे भी जिक्र नहीं कर रहे। बाय बाय, सर सुल्तान ने कहा और इसके साथ ही लाइन बेजान हो गई। इमरान ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर जोर जोर से सुलेमान को आवाजें देने लगा। क्या बात है साहब, क्यों गला फाड़ रहे हो? जरा वॉल्यूम नीचा रखें। हो सकता है आपके हमसाये में कोई तालिब इल्म पढ़ रहा हो, कोई बीमार हो, वगैरह वगैरह। सुलेमान ने रेडियो का स्लोगन दोहराना शुरू कर दिया। अबे रेडियो की बेसुरी धुन, जल्दी करो, ये सामान उठाओ, सब उठाओ यहाँ से। सदर मुमलिकत फ्लैट पर पहुंचने वाले हैं। इमरान ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। अभी तो मैंने ऑल वर्ल्ड के साथ उर्दू का बावर्ची लगाया है और आपकी दिमागी सेहत अभी से मशकूक हो गई। किसी पढ़े लिखे से पूछकर जब मैंने अंग्रेजी बावर्ची लगाया था तो आप गिरेबां फाड़ कर सड़कों पर निकल गए होंगे। सुलेमान ने आंखें निकालते हुए कहा। बकवास मत करो, जल्दी से हाथ सामान उठाओ और सुनो, तुम एक्स्ट्रो का रूप ढाल लो। सदर मुमलिकत एक्स्ट्रो से मिलना चाहते हैं और कोई राज की बात करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से एक्स्ट्रो बन जाओ, जल्दी। 5 मिनट में, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। मैं और एक्स्ट्रो और सदर मुमलिकत राज। साहब, अगर मैं पागल हो गया तो आपको दाल के बजाय मुर्गी खानी पड़ेगी और फिर ना कहना कि मेरे खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई है और मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। ब्लड प्रेशर आधा कम और आधा ज्यादा हो गया है। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने दाल खिलाकर आपकी ये मुतवक्किल बीमारियां कंट्रोल में रखी हुई हैं। सुलेमान ने गुसल खाने के दरवाजे के करीब होकर जोर जोर से कहा। अभी नाहिंजार, ऑल वर्ल्ड उल्लू एसोसिएशन के सदर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें ऐसे ही मौके के लिए एक्स्ट्रा बनने की रिहर्सल कराई थी। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि सदर मुमलिकत पहुंच जाएं और मुझे इनके सामने एक्स्ट्रा को जूते मारने पड़े। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में गुसल खाने के अंदर से जवाब देते हुए कहा। सुलेमान चंद लम्हे खामोश खड़ा सोचता रहा और इमरान का मूड पहचानता था और इमरान का मौजूदा मूड बता रहा था कि वो सब कुछ इंतहाई संजीदगी से कह रहा है, इसलिए हुक्म की तामील होनी चाहिए। इसने कंधे उचकाते हुए मेज पर पड़े हुए बर्तन समेटे, मेज को साफी से साफ किया और फिर तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुलेमान ने जल्दी से बर्तन बावर्ची खाने में फेंके और फिर पिछले कमरे में गुसल खाने में घसीटता चला गया। सुलेमान ने जल्दी से बर्तन बावर्ची खाने में फेंके और फिर पिछले कमरे के गुसल खाने में घुसता चला गया। इसने गुसल खाने की अलमारी से एक खूबसूरत तराशी का इंतहाई दीदा जेब सूट निकाला। सूट के रंग से मैच करती हुई टाई भी निकाली और फिर इसने अपने कपड़े उतारकर अलमारी के निचले खाने में फेंके और सूट पहनने में मसरूफ हो गया। सफेद बेदाग कमीज के कॉलर बंद करके इसने टाई बांधी। पतलून पहनकर इसने कोट पहना। अलमारी का एक खाना खोलकर इसने एक डब्बे में से हीरा जड़ा हुआ टाई पिन निकालकर टाई पर लगाया। चमड़े के नए बूट और
जुराबें पहनी। हाथों पर सफेद रंग के दस्ताने चढ़ाने के बाद इसने अलमारी के एक कोने में मौजूद सियाह रंग का नकाब पहन लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर एक्स्ट्रा बन चुका था। इसने बड़े आईने से अपना मौजूदा हुलिया देखा। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। सुलेमान ने एक्स्ट्रा के मखसूस लहजे की मश्क करने शुरू कर दी और जब इसे पूरी तरह तसल्ली हो गई तो वो गुजरखाने से निकलकर कमरे के एक आराम और सोफे पर आकर बैठ गया। नकाब में आंखों वाले हिस्से पर तारीक शीशे लगे हुए थे। इसे मखसूस शीशे को बाहर से तारीक लगते थे जबकि अंदर से बिल्कुल शफाफ थे। सुलेमान ने करीबी मेज पर रखा हुआ एक अंग्रेजी रिसाला उठाया और इसमें छुपी हुई तस्वीर देखने में मसरूफ हो गया। इसलिए दरवाजा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसने अपना मखसूस टेक्निकल लिबास पहना हुआ था। चेहरे पर हमाकतों के अबशार हस्ब दस्तूर बह रहे थे। वाह वाह, क्या रंग ढंग है। काश अल्लाह ताला ने मुझे ही एक्स्ट्रा बना दिया होता। कम अज कम इतना खूबसूरत सूट तो पहनने को मिलता। इमरान ने बड़े हसरत बड़े लहजे में कहा। वो बड़ी नाकदाना नजरों से सुलेमान का जायजा ले रहा था। तुम्हें बगैर इतना दिए हुए अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? सुलेमान ने एक्स्ट्रा के लहजे में गुजारते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, लेकिन बेटा सुलेमान, अरे एक्स्ट्रा बस जरा ख्याल रखना, सदर मुमलिकत गुस्से के तेज हैं। ऐसा ना हो कि हाथ छोड़ बैठे और तुम्हारी गुर्राहट किसी डेगची में पड़ी उबलती रह जाए। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। शट अप, मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत करो। सुलेमान का लहजा और ज्यादा फाड़ खाने वाला हो गया। अच्छा बाबा अच्छा, ये एक्स्ट्रा है। ऐसी मुसीबत गुस्सा तो नाक पर धरा देता है। बेचारी जूलिया खामखा हसरत में मर गई। सुनो, मैं खुफिया घंटी बजाऊं तो इसके 15 मिनट बाद तुमने कमरे से बाहर निकलना है। मैं यही जताऊंगा कि तुम अपने हेडक्वार्टर से आए हो और खुफिया दरवाजे से फ्लैट में दाखिल हुए हो। बाकी तुम जानो और सदर मुमलिकत, इमरान ने कहा और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। कापूना शहर से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से रेगिस्तान के वस्त में खाली रंग के एक बड़ी सी इमारत मौजूद थी। इस इमारत तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर का खौफनाक रेगिस्तान अबूर करना पड़ता था। इसलिए जाहिर है कोई आदमी इधर न आ सकता था। इमारत बाहर से बिल्कुल टूटी फूटी और खस्ता हालत में थी। यूं लगता था कि जैसे सैकड़ों साल पुरानी इमारत हो और जो अब आसार कदीमों में तब्दील हो चुकी हो। लेकिन इस इमारत के नीचे एक और बड़ी खुफिया इमारत थी जिसमें 12 कमरे और 2 बड़े बड़े हॉल थे। ये सब सेंट्रल एयर कंडीशनर थे। बिजली की जनरेटर अंदर ही लगे हुए थे और ये हॉल और कमरे जदीद तरीन फर्नीचर और सामान से मुज़य्यन किए गए थे। इस वक्त एक कमरे में मौजूद मेज के गिर्द 8 आदमी खामोश बैठे हुए थे। इस इमारत का कोड नाम एक्शन सेंटर था, जबकि एक कुर्सी खाली थी। 8 आदमी एक खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इस इमारत तक पहुंचाए गए थे। इन 8 अफराद में से 4 का ताल्लुक रूसिया से और 4 का ताल्लुक काफिरिस्तान से था। ये सब अपने अपने मुल्क के माया नाज दिमाग और आला तरीन औहदेदार थे। जिस आदमी का इंतजार किया जा रहा था वो रूसिया का चीखौफ था, रूसिया का स्पेशल सर्विस का आला औहदेदार। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और नीले रंग के सूट में मलबूस लंबा तिरंगा और इंतहाई सेहतमंद जिस्म का मालिक चीखौफ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद सब आदमियों ने इसे एक नजर देखा और फिर वो चौकन्ने होकर बैठ गए। लेकिन इसमें से किसी ने इसके इस्तकबाल के लिए खड़े होने की कोशिश न की, क्योंकि इनकी अपनी हैसियत भी चीखौफ से कम न थी। चीखौफ तेज कदम उठाता खाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और इसके बाद इसने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा डब्बा निकाला जिस पर मुख्तलिफ रंगों का बटन नस्ब था। इसने बारी बारी तमाम बटन दबा दिए और फिर डब्बा मेज पर रख दिया। अब आप बेफिक्र होकर बातचीत कर सकते हैं। मैंने चेकिंग के तमाम निजाम ऑन कर दिए हैं, ये चिकोफ के संजीदा लहजे में कहा। चूंकि हम पहली बार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हमें तारुफ कराना चाहिए ताकि हम तफसील से एक दूसरे के बारे में जान सकें। चिकोफ के करीब बैठे हुए एक दरेर उम्र लेकिन शैतान सूरत आदमी ने तजवीज पेश करते हुए कहा, ठीक है,
سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا. میں روسیہ کی اسپیشل سروس کا ڈائریکٹر جنرل چیکوف ہوں اور موجودہ مشن کے لیے ایک معاہدے کے تحت میرا نام بطور چیئرمین تجویز کیا گیا ہے. اب آپ باری باری اپنا تعارف کراتے جائیے. چیکوف نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا, میرا نام ایشور داس ہے. میں کافرستان کی ٹاپ سیکرٹ تنظیم مہادیر چکر کا سربراہ ہوں. میری تنظیم ہر قسم کے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. چیکوف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر مگر شیطان صورت آدمی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا, مجھے دلیپ سنگھ کہتے ہیں. میں کافرستان کی سیاسی جرائم کی تنظیم ایکوڈور کا سربراہ ہوں. ایشور داس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا, یہ نوجوان سینڈوٹائپ جسم کا مالک تھا. اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں یوں لہرا رہی تھی کہ انہیں دیکھ کر ہی خوف آتا تھا. میرا نام پانڈو بھائی ہے. میں کافرستان کی فورن ایکٹیویٹر کا سربراہ ہوں. دلیپ سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گنجے سر اور طوطے جیسی ناک والے ادھیڑ عمر آدمی نے اپنا مختصر کا تعارف کرایا. میرا نام جگجیت رام ہے. میں کافرستان کی اسپیشل سیکیورٹی سروس کا سربراہ ہوں. پانڈو بھائی کے ساتھی نے کہا, مجھے ارتا مونوف کہتے ہیں. میں حکومت روسیہ کی ٹیکنیکل سروس کا اعلیٰ عہدیدار ہوں. جگجیت رام کے ساتھ بیٹھے ہوئے پکوڑے جیسی سرخ ناک کے مالک نوجوان نے گول مول سا تعارف کراتے ہوئے کہا, مجھے ایورن کہتے ہیں. میں روسیائی انٹرنل سروس میں اعلیٰ عہدیدار ہوں. ارتا منو کے ساتھی نے کہا, میں کے جی بی کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہوں. میرا کوڈ نام اسپارک ہے. ایورن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بانس کی طرح لمبے اور دبلے آدمی نے اپنا تعارف کرایا. میرا تعارف بے حد مختصر ہے. میں روسیائی فورن ایکٹیویٹرز کا ڈائریکٹر ہوں اور میرا کوڈ نام ایم ہے. اسپارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے پست قد لیکن بھاری جسم کے مالک آدمی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا, اور اس طرح سب لوگ اپنا تعارف مکمل کروا چکے تھے. ساتھیوں, ایک دوسرے سے آپ لوگ متعارف ہو گئے ہیں. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دو ملکوں کے اعلیٰ ترین دماغ یعنی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو اس میٹنگ کا مقصد معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس مشن کا تمام پس منظر آپ کے سامنے آ جائے. ہمارا یہ مشن ایشیائی ملک اور کافرستان کے ہمسائے پاکیشیا سے متعلق ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکیشیا ایک پسماندہ اور غریب ترین اور غیر ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن یہ ملک انتہائی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے. اس ملک کے باشندے انتہائی محنتی ہیں. وہ دن رات اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اب تو اس ملک نے سب کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. یہ اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے. یہاں ہنر اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے. اس ملک کی سیاسی اور جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ روسیہ اور کافرستان اسے کسی قیمت پر بھی طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے, جبکہ تمام مسلمان ممالک در پردہ پاکیشیا کی مالی امداد کرتے رہتے ہیں. اس طرح یہ ملک تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ ملک روسیہ کافرستان دونوں کے لیے خطرناک حیثیت اختیار کر چکا ہے. ایکریمیا گو در پردہ اس کے مخالف ہیں, لیکن سیاسی حالات کی بنا پر وہ بظاہر اس کی امداد کرنے پر مجبور ہے. شوگران روسیہ سے مخالفت کی بنا پر اس کی امداد کر رہا ہے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان اور مسلم حکومتیں تو کھلے عام اس کی امداد کر رہی ہیں. اس طرح پاکیشیا کی سیاسی پوزیشن بے حد مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے پاس اس بات کا حتمی ثبوت موجود ہے کہ پاکیشیا در پردہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. ایٹم بم تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں. وہ ہائیڈروجن بم ٹیکنالوجی سے بھی آگے بڑھ کر ایک نئی ٹیکنالوجی اپنا رہے ہیں. اسے سنی ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے, یعنی ایسی ٹیکنالوجی جس میں شمسی توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے بموں کی تیاری پر پاکیشیا کام کر رہا ہے جو روسیہ, ایکریمیا اور شوگران ٹیکنالوجی سے سینکڑوں سال آگے ہیں. سورج سے زیادہ طاقتور لیکن بظاہر پتھروں سے بھی حقیر. ابھی اس سلسلے میں کوئی حتمی بات تو سامنے نہیں آئی, لیکن یہ اطلاع ضرور ملی ہے
کہ ایسی जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर खुफिया तौर पर पेशरफ्त हो रही है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी के मराकज़ पाक एशिया ने अपने मुल्क में कायम नहीं है, बल्कि किसी दूर दराज के इस्लामी मुल्क में खुफिया तौर पर बनाए गए हैं। ऐसा मुल्क जिसका पता लाखों कोशिशों के बावजूद फिलहाल नहीं लगाया गया। बहरहाल पाक एशिया को इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की इजाजत देना इसे दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनाने का मुतरादिफ है। इसलिए काफिरिस्तान और रूसियाही हुकूमतों के सरबराहों में एक खुफिया मुलाकात हुई, जिसमें ये तय पाया कि हुकूमती सतह पर सामने आए बगैर पाक एशिया को हर लिहाज से तबाह कर दिया जाए और इस नई टेक्नोलॉजी के मराकज़ को तलाश किया जाए, और वो मराकज़ जिस मुल्क में भी हो इन्हें बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। चुनाचे दोनों हुकूमतों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ, जिसके नतीजे में ये पहली मीटिंग हो रही थी। हर हुकूमत ने अपने चार मेंबर्स नामजद किए हुए थे और मुझे इस मिशन का इंचार्ज नामजद किया गया है। तफसीलात हमने तय करनी है कि इस मिशन के लिए क्या लाहे अमल तय किया जाए, और इस खुफिया इमारत को इस मिशन का सेंटर मुंतखब किया गया है। इस इमारत का कोड नाम एक्शन सेंटर है, और आप लोग जानते हैं कि ये इमारत दोनों मुताल्लिका मुल्कों से हटकर एक गैर जानिबदार मुल्क में मौजूद है, एक ऐसे मुल्क में जो रूसिया का हलीफ है। अब आप लोगों के जहन में कोई लाहे अमल हो तो आप तफसील से बात कर सकते हैं। चिकोफ ने मिशन की तफसील बताते हुए कहा, चिकोफ, मेरा ख्याल है कि हमारा मिशन गोरिल्ला कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई जिससे पाक एशिया के अहम अड्डे, अहम इमारत, कारखाने मिले और बैन गर्ज ये है कि तमाम अहम तरीन मराकज़ यकसर तबाह हो जाएं। इस तरह पाक एशिया हर लिहाज से कमजोर हो जाएगा और अगर आगे ना बढ़ सकेगा। पांडु भाई ने तजवीज पेश करते हुए कहा, तुम्हारी तजवीज अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसी कार्रवाई का नतीजा एक होलनाक जंग की सूरत में सामने आएगा, जो फिलहाल हमारी हुकूमतें नहीं चाहती। अलबत्ता किसी साइंसी हरबे से ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। चिकोफ ने जवाब दिया, मेरे जहन में एक तजवीज है कि क्यों ना पाक एशिया में सियासी या मजहबी फसादात करवा दिए जाए और इसके नतीजे में अपनी मर्जी की हुकूमत को इक़्तिदार संभालने का मौका दिया जाए, ताकि वो हुकूमत हमारे इशारों पर चलकर हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। एम ने तजवीज पेश करते हुए कहा, बज़ाहिर ये आसान है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। पाक एशिया के अवाम हम दोनों मुल्कों के खिलाफ दूर रोई तौर पर दुश्मन नजरियात के मालिक हैं। वो ऐसी हुकूमत को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने की कोशिश करने के तैयार होंगे जो हमारी दोस्ती का दम भरे। नतीजा ये है कि वहाँ फौरी इंकलाब आ जाएगा और हमारा क्या धरा सब बेकार चला जाएगा। पांडु भाई ने इस तजवीज को रद्द करते हुए कहा। इसके बाद काफी देर तक खामोशी तारी रही। फिर यशुदास ने जबान खोलते हुए कहा, साथियों, मेरे जहन में एक ऐसी तजवीज है कि अगर इस पर अमल हो जाए तो पाक एशिया को हमेशा के लिए बेबसी की मौत मारा जा सकता है और वो टेक्नोलॉजी के मामले में सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा और जाहिर है फिर बेबसी और इंतहाई पसमानदा मुल्क हमारे लिए तरनवाला बन जाएंगे। हम जब चाहे इसे आसानी से हड़प कर सकते हैं। ईश्वर दास ने बड़े तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी तजवीज है आपके पास? चिकोफ ने बड़े लहजे में कहा। बाकी सब लोग भी अचानक चौंक पड़े और ईश्वर दास को देखने लगे। मेरी तजवीज ये है कि पाक एशिया में बहने वाले तमाम दरियाओं में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाए जिससे ज़हनी पसमानदगी पूरे पाक एशिया में फैल जाए और इन दरियाओं का पानी ही चूंकि खेतों में लगता है और पानी और पीने का काम आता है, इसलिए इस केमिकल का असर बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एक साल में पाक एशिया का हर फर्द ज़हनी तौर पर पसमानदा होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि पूरा मुल्क पागलों और ज़हनी मरीजों का मुल्क बन जाएगा। ऐसी सूरत में ये ज़हनी पसमानदगी की आइंदा नस्लों में भी सलाहियत कर जाएगी और नतीजा ये होगा कि सैकड़ों सालों तक पाक एशिया टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ना उभर सकेगा और हमेशा के लिए बेबसी की मौत मारा जाएगा और इस तरह वो हर काम रूसिया और इस्राइल काफिरिस्तान के लिए तरनवाला बनकर रह जाएगा। यशुदास ने बड़े मुतमईन लहजे में इतना खौफनाक तजवीज पेश करते हुए जैसे वो कई बिल्कुल मामूली सी बात कर रहा हो, जबकि मीटिंग में मौजूद बाकी अफराद को ये सोचकर हरी झुरझुरी आ गई थी कि 10 करोड़ अफराद को पागल बना दिया जाए।
آپ کی تجویز بے حد خوفناک لیکن انتہائی دور رس ہے، لیکن اس میں دو چیزیں وضاحت طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسا کون سا کیمیکل ہے جس کے اثرات اتنی جلدی نکل سکیں گے، پھر یہ کیمیکل شفاف اور بے بو ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاک ایشیا میں بہنے والے اتنے بڑے بڑے دریاؤں میں ملانے کے لیے کیمیکل کی اتنی مقدار چاہیے، اس کا اندازہ بھی کیا کر لیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اتنے دریاؤں میں اپنی بھاری مقدار میں کیمیکل کیسے ملایا جائے گا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ رہ سکتی۔ چیکوف نے ایشوداس سے کہا۔ چیکوف نے ایشوداس کی خوفناک تجویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا، آپ کی پہلی بات کا جواب ہے کہ ایسا کیمیکل ہمارے سائنسدان ایجاد کر چکے ہیں جو بے رنگ اور بے بو ہے۔ اسے استعمال کرنے سے انسان آہستہ آہستہ ذہنی طور پر پسماندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے تجربات بھی کیے جا چکے ہیں۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کیمیکل کو بنانے کا ایک بہت بڑا اور خفیہ کارخانہ بن چکا ہے جہاں اس کیمیکل کو مسلسل سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال تک اس کی تمام پیداوار اس مشن کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی۔ آخری بات کا جواب یہ ہے کہ پاک ایشیا کے تمام دریا سوائے ایک بڑے دریا کے کافستان کے مضبوط پہاڑی علاقے دلمیز سے نکلتے ہیں، اس لیے ان دریاؤں میں یہ کیمیکل پھیلانے کی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور جہاں تک ایک دریا کا تعلق ہے، آگے جا کر باقی سب دریا اس بڑے دریا میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح اس دریا کو بھی آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ ناول کاروان دہشت کا پارٹ 1 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 25 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔